Welcome on online data communication network lectures. Previous lecture we have seen the your topic when in this lectures we have seen the uh, welcome on online video online lecture on data communication network. In previous lecture we have seen the different types of the categories in the networks. We already discussed about the LAN and MAN, and we are discussing the WAN. The WAN is actually divided into two different parts. First part is associated with the transmission line. The transmission line is nothing but it is the communicating medium which are connected the different two ends communicating devices, where your data is actually exchanged by means of transmitting the bits of streams. And this transmission line is uh, sometimes is called your about your requirement. Sometimes is known as copper cable, or you say twisted pair cable, or optical fibers. uh, this is actually two types where the it is all connected actually with the wired with a physical media, that is known as the wired transmission line. And when there is no physical connection, they are connected through the by the air, that is known as the wireless transmission media. So it depends on the requirements of the users, two ends user, uh, what they are using uh, this technology, network technology. And second part is the switching elements. Switching elements is the most important part of your devices, because this switching element is actually carrying the uh, your datagram or packet through the switching through the network switching element. Or you can call this switching technique in a short form, that is also known as the subnet. The arrangement of this switching elements are connection arrangement या geographical uh, uh, distributions are known as the subnet. And each subnets is connected through the end user. The user, those are actually sharing this multiple access connections, and this subnet is recognized or address the special address, that is the IP address. And each uh, connecting communicating devices having the IP different types of unique IP address. So if you recap the main the this recap is the wide area network provides the long distance transmission of data, image, audio, video, or you can say video information over a large geographical areas that may comprise a country, continental, or even the whole world.
The vein can be complex as a backbones uh, that connect the internet, or simple as a dial-up line that connects the home computer to your the networks. So simply, if you see the diagram of this actual picture is wise. This is the subnet. This one is the subnet. There is a router which are interconnected to each other, and this is connected with the your and user. Say this is the end user A and user B. Because these are the communicating devices. Likewise, I am taking always as a PC. So this is the actual connection path. This is the multiple access link, and this link is connected this subnet. In between there is a lane to connect this end user with this subnet. So the one end of the this lane is connected to subnet, and other end is connected to the communicating devices. Same thing is here. First it is connected to the lane, and lane, after the lane there is a and communicating users. This is like this way. Here we can draw lane, or after the lane you having the another group of networks, that is the this and this is C, D, E, F, and this is G. Now what I am saying, two or more than two communicating devices are interconnect. They are forming the network. So you can see this is the network. I am representing network by the net 1. This is also a one group of network. This is net 2 group, and this is also a one type of network group. This is known as net group number 3. After the assigning the this group 1, group 2, and group 3, when the two or more than two network groups are forming the internet, the network of the network. So this is the actual scenario of the network of the network. How they can be connected to each other through this WAN. And WAN is having the two components. One is the transmission line, and another one is the switching element. Switching element is nothing but is the subnets of the this switching device. This switching device is like this way. This is the 3 terminal. Two terminals are arranging to the your devices, and one is used for your uh, physical carrying your data. So
this is shown like this way. Okay, so now how this network is formed. So first of all, we are using this switching device. This device is known as routers. So this router is we are making the routers. This is first router, second router, third router. For simplicity, I am only taking the this routers, and how to connect this, we are covering this by the square box. Okay, this is the symbol of your switching device, right? Now what we do now, we are covering by this in a circle like this, and one point is here, one point is here, and one point is here. And what we do now, we have taken this network, so we will putting here network group 1, network group 2, and network group 3. Okay, putting in the box, putting in the covering with the box. After the drawing this, what we do now, this is one group, this one is the second group, this one is the third group. Now interconnect this communicating devices to each other. Why this fashion? Like this, like this, and like this. And the end user of this group 2 is connected by this. The end user of group connected by this end router, and this is connected by the this routers. Okay, so this is the WAN switch WAN. So this is diagram of the switch WAN wide area networks, and how its work. So first of all, we are giving the labeling. Labeling is nothing but is the naming. The first device is given by A, B, C, D, E, and F. So now what we can say, the A router is connected with the net group of 2,
The B router is connected by the net group of A, and the D router is connected by the net group of 3. So this whole figure is known as subnet. So it is called the this whole diagram which I am covering like this. This is known as subnet. Okay. Now there is two things. One is how the switching technique is uh, actually happened in this subnet, and how this subnet is recognized this group network. So what the lane is addressing, the naming this group, your group is 1. There is a number naming. Suppose I am giving the 131. The 131 is the service provider, internet service provider, and after that it is provided by the at which area this net lane is working. Suppose 108 particular area, and after that we are putting, roughly we can say this is the Reliance service provider, this is the our area where GIDA is working, and here in GIDA this lane is actually having the connection, and that connection is given by the in the campus there is the main server. So server is assigning here 1 this group, and after that assigning we again put the colon, and we are giving the addressing number 0. If there are the two end users, so it is started from 1. So here in the place of 0 we are putting 1. So we can say in this subnet, in this vein switching vein subnet, in the network of the network, this is the actual user is 1 in this local area network. So this is PC number 1, and after agar we have recognized this P, we are given the 2. Here net is 2. How we given the number? Same service IP provider, and after putting in which area, this is the hexa representation code, and here what we do now, colon dot, this is net 1, so it is obviously net 2, group of net 2, and this is the 0. How, try it at your home, how you assigning the addressing this net 3 group? Simple. What we do now, same thing is written here, 131 colon 108. I'm going here 131 108 colon, this is the group number 3, so we are putting here 3 colon 0. If there are the 3 users, so it is started by 1 2 3. Okay, this is for the this network. Now come to the our main point. This is the switched WAN in a category of the WAN network. So this is the router which are interconnected to the each other, and
each router, each after the labeling of this, each A, B, C, D is or called router. R router, called as a router. Okay, so how many routers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So consider A wants to send a data to F. That means the group of network of the one user A using this subnet and applying these switching techniques, they send this data to the F. Yani A wants send packet to the F. Now look at this. Where is your A? A is in this network group 1, and where is your F? It is the network in group 2. So your F is here, A is in this box. So he sent the packet, right? Packet is coming from A. So here we want display the A, and this box is represent the this data to travel here. So we given the path of direction. Now it should be go to the this network. So it goes to shortest route among this interconnected the routers. See where is get this outer routes. First of all, the group of the network 1A send the data in a switching device in router B. B is, see the shortest path, this one is the your shortest path. If ये आप इधर से जाओगे तब भी ये लॉन्ग रूट पड़ेगा, बहुत लॉन्ग पड़ेगा. शॉर्टेस्ट पाथ सिर्फ यही है. सो डेटा सेंड should be flow in this direction. So it passes from this router, and these routers are connected by I'm saying that this is the 3 terminal device. 2 ends are connected with the router, 1 end is connected to the your end users. So your packet A is delivered from A switching elements routers towards the B switching routers. So it travel here A packet and delivered in the network of the F2. How he get the actual डेटा, और कैसे ये पहचानेगा कि इस ग्रुप के अंदर जो हमारा एफ है इसको डिलीवर करे. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब डेटा यहाँ से सेंड किया जाता है तो एक रूटिंग टेबल बनाते हैं जिसपे एक तरफ इनपुट पोर्ट, ठीक है, और एक तरफ आउटपुट पोर्ट टेबल बनाते हैं. ठीक है, इनपुट पोर्ट को हम एड्रेस नंबर देते हैं और ये इसका यूनिक एड्रेस नंबर है 131:108::0. यहाँ पे इसका जो नंबरिंग होगी इस वाले पे ये होगी 131:108:, ठीक है, और 1:0. ये इस लेन का एड्रेस है. ठीक, इस लेन के अंदर ये ग्रुप है. अब ये इस आईपी एड्रेस के असाइंड डिवाइस पे जाएगा.
इस डिवाइस का भी एक एड्रेस होगा, सपोज यहाँ पे ये 70 है, ठीक है। और जो डेटा इसको सेंड करना एफ का, इसका आप मान लीजिए सपोज 90 है। सो तो रूटिंग टेबल जो बनेगी वो आपकी किस तरह से बनेगी, इनपुट पोर्ट का एड्रेस 70 और आउटपुट पोर्ट का जो एड्रेस है 90, ये यहाँ मेंशन रहेगा, ठीक है। इसी के अंदर इसका पोर्ट का एड्रेस असाइंड रहेगा, जो कि आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस पोर्ट के अंदर इसकी ये वैल्यू, राउटिंग की वैल्यूज असाइन की जाएगी उस पीसी की, जो इस लेन ने इसको कॉन्फ़िगर करके पीसी नंबर 1 पे डाला होगा। तो ये अब जो वैल्यू है जब इनसाइड जाएगी तो ये जाएगी 131.8:1:1। पहले ये डिलीवर्ड होगा, ये डेटा राउटिंग इस राउटर के थ्रू बी से पास होगा ए से जाएगा इस नेटवर्क में। F2 इस वैल्यू को जब चेक करेगा कि ये जो नेटवर्क से जो डेटा आया ये इस लेन के नेटवर्क से आया और ये डिलीवर्ड होना है हमारे नेटवर्क के अंदर की जो आईपी एड्रेस, जो असाइनिंग जो फिजिकल एड्रेसिंग है वो इस फिजिकल एड्रेसिंग पे जाएगा। ये लॉजिकल एड्रेसिंग है, ये फिजिकल एड्रेसिंग है। तो इस फिजिकल एड्रेसिंग पे ये डिलीवर्ड होगा, तो ये इस नेटवर्क के अंदर आएगा और आराम से ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये असाइन करके इसको चेक कर लेगा ये इसके पास है। तो ये यहाँ पे डेटा इस नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करते हुए ये लेन इसको यहाँ पे डिलीवर कर देगा। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे करके ये जो इसका डेटा फ्लो है वो आपका ऐसे लेन से यहाँ से इस नेटवर्क पे लेन इनकी ये दोनों की वैल्यूज पहले अपना लेन का एड्रेस डालेगा और फिर जो सेंड किए हुआ डेटा का एड्रेस जो कि जो इसका फिजिकल एड्रेस है इसको सेंड करेगा। यहाँ से सबनेट से इसका डेटा पास होगा जो इस तरीके से वर्क करेगा। पहले इस नेटवर्क से यहाँ से डेटा चलेगा ए पैकेट, फिर ये पैकेट बी इसको शॉर्टेस्ट रूटर पाथ को देखता हुआ इस ग्रुप को डिलीवर करेगा। जैसे ये इस ग्रुप में आएगा, अमंग दिस ग्रुप ये इसके इस आईपी एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाएगा। तो ये रूटिंग टेबल से पता चलेगा कि ये एड्रेस किसको, पर्टिकुलर एड्रेस को जाना है। ये 70 नंबर और ये 90 नंबर ये इस पीसी को असाइंड है, 70 इस पीसी को असाइंड है और ये 90 नंबर इस पीसी को असाइंड, ठीक है। तो अब इस हिसाब से जो पीसी के अंदर जब ये जाएगा तो ये अपने ग्रुप ऑफ नेटवर्क में चेक करेगा कि इस ग्रुप के अंदर इस एड्रेस पे ये जो लास्ट वाली जो डिजिट लिखी जाती है यहाँ पे ये किसके पास डिलीवर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे ये इस टेबल पर रिफर करेगा, यहाँ पे लिखा जाएगा ये 90 के लिए है तो ये 90 पे ही जाके डिलीवर्ड होगा। सो दिस इज become a 90, so it delivered here A to F। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का प्रोसेस है। और इस मॉडल में इस जो फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पे जो जितने जो ग्रुप जो एलिमेंट्स आपको हमने ये पीसी के फॉर्म में वेयर वी हैव शोन ए बी सी, दिस इज कॉल्ड होस्ट। Each communicating devices which are connected in this net is known as host, or this host is connected to the LAN, ठीक है। Here you have seen this is each group of host is connected to the LAN। यहाँ पे भी LAN पे है, यहाँ पे भी LAN पे कनेक्ट है। और ये लेन जो कनेक्टेड है ये सबनेट से, सबनेट जो
का जो एक्चुअल फिगर है वो ये है राउटर का इंटरकनेक्शंस, और you can say the host uh, can be connected directly to the router. So the combination of this communication lines and router, but not the host from the subnet. So host कोई भी हो सकता है, A B C D. So this is the actual picture of your diagram, where each inter elements, switching elements are connected to each other. Here which we are showing, this is called the packet switching subnet. So this subnet is having the name, this subnets having the name packet packet switching switching sub packet switching subnet. So in the most ways, the network contains the numerous transmission lines. बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइंस होंगी इंटरकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ यूजर्स यूज होता है ना, ईच वन कनेक्टिंग द पेयर ऑफ राउटर्स. सो if the two router that do not share the transmission line wish to communicate, they must do this indirectly by the other routers. अगर by chance ऐसा भी हो सकता है कि जब ये मल्टीमीडिया मल्टी एक्सिस है, इस राउटर पे पहले किसी और ने भी डेटा सेंड किया हो, तब उस समय ये पैकेट यहाँ से सेंड नहीं किया जाएगा, तब उसके लिए ये राउटर्स यूज किया जाता है. इसके लिए फिर से हम इस राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए इसके बीच में और डिफरेंट राउटर्स डालते हैं, ताकि हमारा जो स्विचिंग है फास्ट हो सके, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये खाली ट्रांसमिशन राउटर्स मिल सकें ट्रांसमिशन पैकेट को डिलीवर्ड करने के लिए. तो व्हेन द पैकेट इज सेंड फ्रॉम वन राउटर टू अनदर वाया वन और मोर intermediate routers, the packet is received at the each intermediate and router in its entirely. What they do now is first they store there until the required output line is free, and then it's forward, store करेगा and forward करेगा. The subnet working on this principle is called packet switching, और यू कैन से स्टोर एंड फॉरवर्ड. तो फेलियर ना हो तो क्या करते हैं, ये राउटर्स इस पैकेट का जो आया है ए से, इस पैकेट को पहले स्टोर करेगा तब फॉरवर्ड करेगा. अगर यहाँ पे फेलियर हो गया, इस डायरेक्शन में पहले से कोई पैकेट है, तो दे कैन नॉट मूव. सो दे द अनदर ऑप्शन इज, चूंकि इसने स्टोर किया हुआ है, तब ये इस डायरेक्शन में इसको फॉरवर्ड करेगा. थोड़ा सा टाइम एज कंपेयर टू इस लाइन से इस वाले रूट पे ज़्यादा लगेगा. सो इसलिए वो स्टोर करता है कि ताकि पॉसिबिलिटी ये रहे कि इफ़ एनी चांस द राउटर्स लाइंस आर बिजी, दे कैन इजीली टू सेंड इन अनदर पॉसिबल routers. So this is called the packet switch subnet. Near all wide area network
have store and forward subnet. When the packet are very small and the size is also small, you can say in another word, if you want this packet जो है, this packet p can be divided into the small piece, so it is become like this small piece. एक सिंगल पैकेट को हम कई छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये एक पैकेट है तो हमने इसको पैकेट 1.1, पैकेट 1.2 और पैकेट 1.3 में स्मॉल, इस साइज को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट पैकेट को करने के को हर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने क्या किया है, इसको स्केलिंग की है. अब ये जो स्मॉल पैकेट है, दे आर नोन एज सेल. This cell can be further divided into the small pieces. So after the small division of this packet is having the name is called datagrams. Okay, so suppose 1.1 packet number is again divided into 1.1, 1.1.2, 1.1.3 and 1.1.4. So the smallest piece of the single cell is known as the datagram. This is called the datagram. This is known as datagrams. This is the datagram. Grams. So again this name is rearranged. So it is called packet switching. So we can say this one is the packet switching datagram. So it is known as packet switching datagram switching techniques. करंटली यही यूज़ होता है पैकेट स्विचिंग डेटाग्राम नेटवर्क, जिसमें हम यूज़ करते हैं IPv4 एंड IPv6 और इसमें सेंड की जाती है एक्सटेंशन .25, एक्सटेंशन .400 ये सर्विसेज यूटिलाइज होती है जो नेटवर्क मॉडल में हमको प्रोवाइड की हुई है. इनिशियली पहले जब नेटवर्क स्टार्ट हुआ था तो ये पैकेट स्विचिंग नहीं थी, पहले मैसेज स्विचिंग थी, क्योंकि वो एक स्मॉल प्रोसेस में हम सिर्फ मेल सेंड कर सकते थे, डेटा नहीं सेंड कर सकते थे.
हमारा डेटा आप जानते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और अदर्स थिंग्स हैं। सो पिक्चर है, तो इसको ये एक ह्यूज अमाउंट डेटा है, तो वो क्या सेंडिंग है, इसीलिए हमने डेटा नेटवर्क कम्युनिकेशन का डिज़ाइन किया। और जब जो मैसेज भेजे जाते हैं तो इन मैसेज के जो छोटे छोटे जो पीसीस हैं इनकी नंबरिंग कर ली जाती है। ये नंबरिंग होने के बाद जब दूसरे एंड यूज़र के पास ये रिसीव्ड होता है, वहाँ पे इसी नंबरिंग के हिसाब से वहाँ पे रीअरेंज इसको किया जा सकता है। क्योंकि इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो पैकेट 1 भेजा हो वो रिसीवर एंड पे पहले मिल गया हो। कोई भी पैकेट जिसको शॉर्टेस्ट पाथ मिला होगा वो पहले अराइव करेगा। और ये डिपेंड करता है कि राउटर्स पे कितने ज़्यादा यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रीम ऑफ दिस पैकेट स्विचिंग नेटवर्क को हमने फॉलो किया और आजकल इसी नेटवर्क का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ये रहा आपका जो पूरा आज जो वेन है, ये आपको हमने आज बताया वेन के बारे में। और हमें ये मालूम है कि आप इस वेन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानने के इच्छुक होंगे। सो जो नेटवर्क का जो प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरलेस नेटवर्क। और वायरलेस नेटवर्क में हम जो देखेंगे, जो हमारा वायरलेस नेटवर्क ये है, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। तो ओनर ऑफ द मोबाइल computer wants to be connected to their home uh, base when they are away from the home. So कोई यूज़र अपने घर से बहुत दूर है और वो छुट्टी होते ही अपने घर पहुंचना चाहता है कि वो जब घर पे पहुंचे तो उसका एसी ऑन रहे और जो टेम्परेचर वो चाहता है उसके आने से पहले सेट हो जाए। तो इसके लिए ओनर ऑफ द मोबाइल कंप्यूटर वांट टू कनेक्ट टू देयर होम बेस व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द होम। सो इन दिस केस वेयर द वायर्ड कनेक्शन इज इम्पॉसिबल इन द कार, एरोप्लेन्स, एरोप्लेन तक आपके घर तक तो लाइन ले नहीं सकते, आप आ रहे हैं जा रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम तब वायरलेस नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ ऑफ वायरलेस नेटवर्क है ये पोर्टेबल ऑफिस के लिए होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग दी टेलीफोन कॉल्स, फैक्स के लिए भी होता है, ईमेल्स के लिए होता है, और रिमोट लॉगिंग जैसी फैसिलिटीज़ के लिए और तमाम भी चीज़ें हैं। ये सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज वायरलेस नेटवर्क का रेस्क्यू ऑपरेशन में है, क्योंकि जहाँ पे कंडीशंस अनइवन हो, जहाँ पे वर्क जाके रेस्क्यू करना हो, रेस्क्यू करना हो, तो वहाँ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको स्पेशली वायरलेस नेटवर्क को हम मिलिट्री ऑपरेशंस में उसके पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो वायरलेस नेटवर्किंग एंड द मोबाइल computing are often related but they are not identical. The portable computers are sometimes wired. For example, the traveler stay in the hotel and the some wireless computer are not portable. For example, in the old building you can see without any network infrastructure. In the simplest form, the system interconnect connection network use the master slave relationship, and the system unit is normally the master taking in the mouse, keyboard or etc as the slave. So master नॉर्मली जो जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है उसको मास्टर कहेंगे, और जहाँ पे प्रोसेसिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहाँ पे खाली इनपुट्स दिए जा रहे हैं, वो हमारे स्लैब्स कहलाएंगे।
So the master tells the slave what address to use and when they can broadcast, how long they can transmit, and in what frequency they can use, and so on. The next setup in this wireless network is the wireless LAN. ये आपके एक पूरी यूनिट में एक पूरा है, इसको आगे की यूनिट्स में देखेंगे. वायरलेस लैन, दिस सिस्टम इन विच एवरी कंप्यूटर हैज ए रेडियो मॉडम. मॉडम इज मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर जो ट्रांसमिट भी करे रिसीव भी करे, एंड एंटीना with with which it can communicate with other system. Often there is an antenna on the ceiling that the machine talk to, and this machine is you can, if you want, I can draw it. This is drawn by, in this topology you can see what we do know. आपने देखा होगा आपके घर में, अगर आप किसी भी डिवाइस को ये कंप्यूटर है आपका और आपने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट किया है, तो क्या होता है, जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है, ये सिंबल है कीबोर्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माउस से आपने भेजा, ठीक है, और आपको कुछ डेटा यहाँ से प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकालना है. तो आप क्या करते हैं, इस प्रिंटर से प्रिंट कमांड टाइप करते हैं. प्रिंट कमांड जो कि इससे वायर्ड से इस पीसी से कनेक्टेड है, प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ से आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एक बेस स्टेशन बनाने की जरूरत, सबसे पहले एक बेस स्टेशन की जरूरत पड़ती है जहाँ से सारे सिग्नल्स जा सके, और न केवल जाएं बल्कि वो सिग्नल्स आ सके. So there is a base station, okay, and this base station is responsible to execute your commands, and this is connected with the wired network. Base station should be connected to wired. और ये इसलिए किया जाता है कि जो डिवाइस आप कमांड के थ्रू उसको आप यूज कर रहे हैं, वो कमांड एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे तभी जाएगा जब वो नेटवर्क से कनेक्टेड होगा. सो इट इज कनेक्टेड विद द नेटवर्क. और बाकी सारे जो डिवाइसेस हैं, क्योंकि वायरलेस डिवाइसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो एंड डिवाइसेस हैं, यहाँ से हम जो डेटा सेंड करते हैं, वो पहले क्या करेगा, इस जो हमारा मेन जो बेस स्टेशन है जिसको हमको करना है, तो हम उसको पहले वायरलेस नेटवर्किंग का यूज़ करते हुए इससे इसको कनेक्ट कराएंगे, एक सेटअप रन करेंगे ताकि वो वायरलेसली इससे इसको वायरलेसली कनेक्ट कर सके. जब यहाँ से कोई कमांड जाएगा तो ये इस कमांड को ले सके, रिसीव कर सके, और इस कमांड के थ्रू ये प्रिंटर आपका प्रिंट निकाल सके. इसको करने के लिए, इस बेस इसको पूरा परफॉर्म करने के लिए हमको एक स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है. उस डिवाइस का नाम है वायरलेस लैन. ठीक है,
इस वायरलेस लैन के थ्रू आप अपने सारे काम को एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वायरलेस लैन का स्पेसिफिकेशन IEEE के स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। उस IEEE का स्टैंडर्ड इस डिवाइस के अंदर है, तो यही सेम स्टैंडर्ड इस प्रिंटर के अंदर होना चाहिए, तभी ये दोनों डिवाइसेस इस सेट्स ऑफ रूल प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे और आपका प्रिंट बाहर आ पाएगा, निकल पाएगा। सो क्या करेंगे कि वायरलेस लैन आर इजीली टू इंस्टॉल, पहले हम इंस्टॉल करेंगे उस पीसी पे, और इंस्टॉल करते हैं, फिर चूंकि वो बहुत छोटा सा एक स्पेस लेता है, और स्पेस लेने के बाद जब इंस्टॉल करते हैं तो उस पीसी का एक नाम आएगा उस प्रिंटर का। जब उस नाम को आप क्लिक करेंगे तो उसी पे वो डेटा सेंड होके बाहर निकलता है प्रिंट के फॉर्म में। तो वायरलेस लैन को हम इजीली तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो सेम लाइन पे आप उसको लगा रहे हैं तो जो डेटा है वो उसकी कैपेसिटी को स्लो कर देता है। 1 से 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड आपका डेटा उसमें यूज होता है, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है। और चूंकि इसमें एरर की चांसेस, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, तो एरर होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो प्रिंट आप उसमें से निकाल रहे हैं वो एक दूसरे फॉर्मेट में है। उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना, उस कन्वर्ट को फिर इस पेपर पे उसके कन्वर्जन को ड्रॉ करके निकालना, ये हायर एरर रेट को क्रिएट करता है। सो इसका एक और डिसएडवांटेज है, इंटरफ्रेंस हो जाता है ट्रांसमिशन। जब दो ट्रांसमिशन लाइन कई डिफरेंट पाथ से, कई सारे पीसीज से, अब यहाँ पे कई सारे पीसीज लगे हैं, कई सारे वायर हैं, तो ट्रांसमिशन वायर के जरिए भी, क्योंकि एक एक वायर दूसरे वायर के साथ ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट है, एक वायर और क्लोजली कनेक्ट है, तो क्या होता है, जिसका इम्पीडेंस, अगर ये वायर 1 है, ये वायर 2 है कनेक्टिंग वायर, तो जिसका इम्पीडेंस कम होगा और जिसका इम्पीडेंस ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, हायर इम्पीडेंस लोअर इम्पीडेंस में इमर्ज करने लगेगा। सारा जो सिग्नल इस पे प्रोपोगेट कर रहा है, जो कमांड्स आपने डाले हैं, वो इसके पे चला जाएगा, वायर 2 पे। और ये वायर 2 ये एक अलग पीसी से कनेक्ट होगा, ये अलग पीसी से कनेक्ट होगा, तो जिसकी वजह से आपका जो प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। दिस वायरलेस नेटवर्क दिस वायरलेस नेटवर्क खाना आएगा, खाना तो आएगा, बस हो गया, बस जा रहे। अब कैसे स्टार्ट करें? ओके। Wireless network comes in many forms. एंटीना अलाउ ओवर ए कैंपस, एक एंटीना कैंपस के ऊपर लगेगा और ये कम्युनिकेट करेगा, और यूजिंग आप सेलुलर, अपने मोबाइल से भी आप नेट यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल टेलीफोन से, ट्रेडिशनल लाइन के एनालॉग मॉडेम के थ्रू भी आप वायरलेस लेंस ले सकते हैं। एक डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विसेज आती है, जिसको बोलते हैं CDPD, CDPD। सी सी का मतलब होता है आपका जो सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा, तो ये कहलाएगा सेलुलर डी स्टैंड फॉर डिजिटल, this is the P, so it is the packet
this is D, this is data. So दिस इज़ द डिजिटल डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विस है, जो कि हम सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए ले सकते हैं. सो नाउ मूव्स टुवर्ड्स द आवर अदर टॉपिक, दैट इज द दिस फिफ्थ वन, दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क इंटरनेट वर्क. As many computer exist in this world, and different wonders, different OS, different hardwares and softwares are used in the modern computers, yeah, communicating devices. So the people connected to one network often want to communicate with the people attached to the different one. The fulfillment of this desire requires that the different and frequently incompatible networks, so we connected sometimes by the means of machines called gateway, and gateways to make the connection and provide the necessary translation. But in terms of hardware and software, the collection of interconnected network is called an internetwork, या internet, or network of the networks. The common form of network is a collection of lanes connected by veins. As you see the picture, how they can connected. Okay, again we can draw. We having this simple network, इधर सिंप्लिसिटी के लिए 4 स्विचिंग एलिमेंट राउटर्स ले रहे हैं कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, और ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, और इसको मैंने ऐसा डायग्राम आपने देखा है पहले. ठीक है, और इससे मैंने कनेक्ट किया है ऊपर की लाइन को, और यहाँ से कनेक्ट करूँगा दूसरे यूज़र्स को, यहाँ से कनेक्ट करूँगा दूसरे को. एंड यू कैन सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हमको उसको कनेक्ट करना होता है वहाँ के राउटर का कनेक्शन, ग्रुप ऑफ राउटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हम इससे शो करते हैं. और जब ये डिफरेंट ग्रुप्स के राउटर्स में जाता है तो उसके राउटर्स से भी हमको इसको कनेक्ट करना पड़ता है. होता क्या है कि जब राउटर से राउटर कनेक्ट करते हैं तो हम उस ऑफिस में जाएंगे जहाँ पे एक्चुअल हमारा वर्कशॉप है, और इस वर्कशॉप पे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक बड़ी हमारी रिसर्च, मान लीजिए एक लैब है, और ये 2 एंड यूज़र, ये मेन सर्वर 1 है, ये मेन सर्वर 2 है, जिसपे हमारा सारा डेटा रखा हुआ है. और हमारे इस ऑफिस में सबरल, मतलब कई सारे डिफरेंट एम्प्लॉइज हैं, कई सारे एम्प्लॉइज हैं. ठीक है, और इनको हमने एक कम्युनिकेटिंग मीडियम से कनेक्ट किया हुआ है. कम्युनिकेटिंग मीडियम से हमने कनेक्ट कर दिया है. जो भी काम है हमको एक दूर इस प्लेस पे, एक बहुत फार प्लेस पे हमको इसको चेक करना है. तो हम क्या करेंगे,
जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम एक मॉडेम लगाएंगे। वी पुट द मॉडेम और इसको पॉइंट टू पॉइंट वेन से कनेक्टेड करेंगे। वेन आपने, ये एक वेन का अपना मॉडेम होगा। ठीक है, अब इसको आप इजीली समझ सकें तो ये कहलाएगा लेन, और आपका सॉरी ये कहलाएगा आपका वेन। और ये जहाँ पे आपका ऑफिस है, जिस पे आप अपने घर पे बैठे हैं और ऑफिस का सारा काम चेक करना चाहते हैं, ये आपका पीसी है, ये आपका कनेक्टेड होगा लोकल लेन से। लोकल एरिया आपके अपने, जो आपका एक मॉडल, ये आपका हो गया रिसर्च लैब। आप, ये आपका हो गया होम। ठीक, और आपने अपने जो डेटा वहां से भेजा गया है इसको करेक्ट करने के लिए आपने एक और इन बिटवीन एक ऑफिस बना रखा है जो कि कनेक्टेड है आपके किसी और डिफरेंट सिटीज में। इसकी डेटा को यहाँ पे इसकी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिजाइनिंग का काम हो रहा है, यहाँ पे हार्डवेयर और पूरा असेंबलिंग का काम होगा। अब ये राउटर जो आपका कनेक्टेड होगा एक्चुअली आपके, दिस इज वेन, ये अलग कंट्री में है, ये अलग कंट्री में है और आप एक अलग कंट्री में है। ये वेन है, ये लोकल एरिया हो गया नेटवर्क। और यहाँ पे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आपने जो प्लांट लगा रखा है ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट पे डिफरेंट डिफरेंट काम होगा, तो आपको एक सेंट्रल हब की ज़रूरत पड़ेगी। और सेंट्रल हब पे जो भी काम हो रहा है उसमें खाली जिसको जो चाहिए वो आप अपने ही यहाँ से कंट्रोल करके इसको प्रोवाइड कर सकें। और ये दोनों, ये जो यहाँ पे हैं इनको ये भी ना मालूम हो कि बगल के रूम में क्या काम हो रहा है, तो सेंट्रल हब से ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकता, सेंट्रल हब ही इनको कनेक्ट करेगा। इस सेंट्रल हब को आप इस लेन के थ्रू, इस क्या कहते हैं स्विचिंग वेन के थ्रू आप यहीं पे घर पे बैठ के कंट्रोल कर सकें। ये जो एक पूरा ये कंप्लीट मॉडल है, ये एक कॉन्टिनेंटल से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ये है, इसको मॉडल को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए इंटरनेट इंटरनेट वर्क। ठीक है, दिस इज मेड ऑफ ए वेन्स और टू लेन्स। मेड ऑफ ए वेन्स एंड टू लेंस। सो अगर हम बात करें कि नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।